என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சியானது தற்பொழுது நடைபெற இருக்கிறது. இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தத்தோ ரக்ஷோபண ஹவனம் வக்ஷே சாந்திகரம் கரம் தேவாலயாதி சம்ஸ்தானே சர்வதோஷாபனுத்ததே பசு பக்ஷி மிருகாதீனாம் நிருணாம் ச மரணே சதி அப்படின்னு ஆகவங்கள் சொல்லியிருக்கு. அதாவது சாந்திகரம் பரம், நமக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய நன்மையை தரக்கூடியது இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் என்ற பூஜை. மேலும் அனைத்து வித தோஷங்களையும் குற்றங்களையும் நீக்குவது இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் என்று சொல்லக்கூடிய பூஜை. மேலும் இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா, பசு பக்ஷி மிருகாதீனாம் நிருணாஞ்ச மரணே சதி. ஆலய வளாகத்திலே ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி, அது எறும்பா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஜீவராசியானது அல்லது மனிதர்கள் ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி ஆலய வளாகத்தில் மரணம் ஏற்பட்டிருந்தா அந்த இடத்துல இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை செய்யணும்னு ஆகவங்கள் சொல்றாரு. அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ ஜீவராசிகள் நம்ம இந்த திருப்பணி செய்யும் போது இறந்திருக்கலாம். அந்த இறந்ததுனால தோஷமானது ஆலயத்தில் சம்பவிச்சிருக்கு. அப்போ நம்மளுடைய இந்த சனாதன தர்மமானது எப்பேற்பட்ட மதம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அஹிம்சா தர்மம் பரமசிரேஷ்டமா நம்மளுடைய மதத்துல பின்பற்றப்படுறது. ஜீவ ஹிம்சைங்கிறதே கூடாது அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு ரொம்ப அழகா தெரியுது. ஆலய வளாகத்துல ஒரு பசு பக்ஷி மிருகம் எது இருந்தாலும் அதுக்கு சாந்தி பண்ணணும்னு இந்த பூஜையை ஆகமங்கள் சொல்றது. அப்படின்னா நமக்கு அஹிம்சா பரமோ தர்மா, எந்த ஜீவராசியும் ஆலய வளாகத்திலேயோ வேற இடத்துலையோ நம்ம துன்புறுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல இருந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடிகிறது. ஆகையினால இங்கே நமக்கு தெரியாமல் அல்லது தெரிந்தோ தெரியாமலோ இரண்டுமே சொல்லிக்கணும். இப்படி இரண்டு வகையிலும் ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி இங்கே இறந்திருக்கலாம். அந்த இறந்ததினால் ஏற்பட்ட தோஷமானது விலகும் பொருட்டு இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் என்ற நிகழ்ச்சியானது தற்பொழுது ஆரம்பிக்க உள்ளோம். இங்கே நடுவிலே வீட்டிருக்கக்கூடிய கலசத்திலே ரக்ஷோபண தேவர் என்ற சாம்ப பரமேஸ்வரனை பூஜை செய்ய இருக்கிறோம். சிவஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடியவர் ரக்ஷோபண தேவர். சிவபெருமானுக்கு வலது பாகத்திலே சதாசிவமூர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய பரமேஸ்வரனை அந்த தேங்காயிலே ஆவாகனம் செய்திருக்கிறோம். ரக்ஷோபண தேவருக்கு இடது பாகத்திலே அருவாள், அந்த அருவாளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்கேஸ்வர் அப்படிங்கிற பகவான பூஜை செய்ய இருக்கிறோம். அவரை சுற்றி அசிதாங்காதி 8 பைரவர்களை பூஜை செய்ய இருக்கிறோம். இப்படியாக இந்த பூஜையானது சிறந்த முறையிலே நடைபெற இருக்கிறது. ஆகையால் பக்தமையினர்கள் அனைவரும் இந்த பூஜையை தரிசித்து எல்லாம் எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரி பூஜை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 4 கால கும்பாபிஷேகம் பண்ற கோவிலேயே ரொம்ப கடினம். 6 கால கும்பாபிஷேகம் பண்ற கோவில்லையும் 2 நாள் 3 நாள்ல முடிச்சுடுவாங்க. ஆனா நம்ம கோவில்ல நிதானமா ரொம்ப அழகா ஆகமங்கள்ல கூறப்பட்டவாறு எந்தவித குறையும் இல்லாம இந்த பூஜைகள்லாம் எம்பெருமானுடைய தனிப்பெரும் கருணையினால இந்த பூஜைகள்லாம் சிறந்த முறையில நடந்துட்டு வர்றது. ஆகையால பக்தர்கள் அனைவரும் அதுக்கு இந்த பூஜைகள்லாம் நடக்கிறதுக்கு பெரும் காரணமே பக்தரான நீங்கள் தான். உங்களுடைய தனிப்பெரும் ஒத்துழைப்புனாலதான் இந்த பூஜைகள்லாம் சிறந்த முறையில் நடக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பூஜையும் தனித்தனியா ஒவ்வொரு நாள் பண்ணக்கூடிய விசேஷங்கள் ரொம்ப அரிதாகிட்டு இருக்கு இப்போ. ஆனா நம்மளுக்கு சுவாமி இங்க அந்த பாக்கியத்தை கூட்டி வச்சிருக்கார் நமக்கு. அதனால அதுக்கு எம்பெருமானுக்கு சிறந்தாழ்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு தற்பொழுது இந்த ரக்ஷோபண ஹோமம் என்ற நிகழ்ச்சியை துவங்குகிறோம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே. ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். ஆச்சார்யः சமாச்சம்ய. அயம் மே ஹஸ்தோ பகவான் அயம் மே பகவத்ரஹ क्षन्तव्योऽहं संकल्पं कुर्यात् तदनन्तरं पुनश्च सकलीकरणं कुर्यात्. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दशकर्णं चतुर्भुजं सर्वं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.
वर्तमानायां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतः श्री कर्पूरवल्यम्बा मनोहरस्य चन्द्रमौळीश्वरपरब्रह्मणः निग्रहानुग्रह परमशक्तिचैतन्यस्य इत्यार्थं भक्तजनानां स्वस्वमनोभीष्टप्राप्त्यर्थं देवस्य जीर्णोद्धारण अष्टबद्धः महामंगलकर्मणि आलयेऽस्मिन् पशूनां पक्षिणां मृगादीनां नृणां च मृतदोषनिवृत्त्यर्थं ज्ञाताज्ञात मृतदोषनिवृत्तिसिद्ध्यर्थं समस्त पवित्रतासिद्ध्यर्थं करिष्यमान मृत्सङ्ग्रहः रक्षोघ्नकर्म करिष्ये सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं परिकल्प्य सामान्यार्घ्यपात्रे गन्धपुष्पाक्षतानि निक्षिप्य प्रणवेन संसदाभिमन्त्रय हेममुद्रयामनीकृत्य अर्घ्यजलेन वेदी मध्ये सर्वधान्यपुञ्जैरलङ्कृते स्तण्डिनमध्ये पद्ममष्टदलं विलिख्य पद्ममध्ये कुम्भमेकं विधाय अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य तस्मै षडुद्धासनमभ्यर्च्य ओं महामनन्तपङ्गाय नमः मां ज्ञाननाळाय नमः मां रक्षोघ्नदेवासनाय नमः कपालं डमरुं सव्ये त्रिशूलं वरशुं परे बिभ्राणमुग्रवपुषं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं दंष्ट्राकरालविलसद्भ्रुकुटीकुटिराननं भूतप्रेतपिशाचादीं भत्सयन्तं महाप्रभुं वटपाग्निसमं देवं रक्षोघ्नं भावयेत् गुरुः ॐ नमः विद्यावाक्य आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा दक्षिणवेद्यां दारुपीठं तदुपरि श्वेतवस्त्रं विन्यस्य तस्मिन् शालितण्डुलान्विते पद्ममष्टदलमालिख्य तस्मिन् सलक्षणं नारिकेलफलं संस्थाप्य अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य नारिकेलफले ॐ महामाधारशक्तये नमः ॐ महां सिंहासनाय नमः मूलेन सम्पूज्य भजाङ्गे ओं महामुदजाल नमः
विम शिरसे नमः ओम शिखायै नमः ओम नेत्रेभ्यो नमः और बंद कर देते हैं भोगात्म पूजा प्रातर्वाम ईशानोद्धारिभ्यो नमः तृतीया वर्णे नमः नमः तृतीया वर्णे भ्यो नमः चतुर्था वर्णे नमः भ्यो नमः सदाशिवाय नमः मूलेन वाक्य आवाहनादि मन्त्रान्तं प्रदर्श्य अर्घ्यत्वा उत्तरभागवेदिकायां उत्तरवेदिकायां दारुपीठे तदुपरि रक्तवस्त्रं विन्यस्य तस्मिन् शालितण्डुलान्विते पद्ममष्टदलमा तत्रस्य पूर्वादि अष्टदलात्रेषु ॐ हां देव्यै नमः ॐ हां वाग्देव्यै नमः ॐ हां पार्वती नमः ॐ हां कृत्तिकायै नमः ॐ हां माहेश्वरी ॐ हां रक्तशक्ति नमः काली नमः शक्तिकादी नमः कर्तिकायामीशाने ॐ हां वीरशक्ति नमः नवशक्तिः सम्पूज्य तदुपरि ॐ हां खड्गासनाय नमः खड्गेशासनाय नमः केशमूर्तये नमः करवालकपालाढ्यं धृतशार्दूलविग्रहम् अट्टहासोल्लसस्वक्त्रं कर्पूरमुखवासितं तत्र कुण्डलकेयूरलसस्पावकलोचनं खड्गेशं भावये देवं सर्वाभीष्टार्थसिद्धये ॐ हां खड्गेशाय नमः विद्यावाक्य आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य खड्गेशम् अन्यस्मिन् पात्रे संस्थाप्य खड्गेशस्य अभिषेचनं कुर्यात् पात्रेऽस्मिन् खड्गं संस्थाप्य खड्गेशस्य अभिषेचनं यथाक्रमं कुर्यात् वाद्यवन्तः
समभ्यक्ष्य ओम अष्टदलेषु ओम ब्राह्म्यै नमः ओम माहेश्वर्यै नमः ओम कौमार्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वाराह्यै नमः ओम माहेन्द्र्यै नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम वीरभद्रायै नमः इत्यावाक्य सर्वोपचारैः सम्पूज्य एवमाराध्य खड्गेशं परितो मन्त्रवित्तमः भैरवानसिताङ्गादीनर्चयेत् स्वस्वनामतः असिताङ्गोरुरुश्चण्डः क्रोधमोन्मत्तभैरवो कपाली भीषणश्चातसंहाराश्चाष्टभैरवाः खड्गस्य परितः अष्टदिक्षु ओम अष्टभैरवानर्चयेत् ततः मण्डलक्रान्तरेखायाम् ओम असिताङ्गभैरवाय नमः ओम ऋतुभैरवाय नमः ओम चण्डभैरवाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम उन्मत्तभैरवाय नमः ओम कमालिभैरवाय नमः ओम ऋभैरवाय नमः ओम असिताङ्गभैरवाय नमः ओम ऋतुभैरवाय नमः ओम चण्डभैरवाय नमः ओम क्रोधनभैरवाय नमः ओम उन्मत्तभैरवाय नमः ओम कपालिभैरवाय नमः ओम भीषणभैरवाय नमः ओम संहारभैरवाय नमः इत्यष्टौ भैरवानभ्यक्ष्य धूपदे निवेद्यादि सर्वोपचार मध्ये रक्षोग्नदेवमावाक्य रक्तपुष्पैः समभ्यक्ष्य परितः पदाष्टके ब्राह्म्याद्यष्टशक्तिः अभ्यक्ष्य तद्वाक्ये अष्टभैरवानाराध्य रक्षितान्न बलिं दद्यात् बलिमण्डलपूर्वेऽस्मिन् अग्निकार्यं समाचरेत् तत्र बलिं दद्यात् मध्ये ओम रक्षोग्नदेवाय स्वाहा ओम असिताङ्गभैरवाय स्वाहा ओम ऋतुभैरवाय स्वाहा ओम चण्डभैरवाय स्वाहा ओम क्रोधनभैरवाय स्वाहा ओम उन्मत्तभैरवाय स्वाहा ओम कपालिभैरवाय स्वाहा ओम भीषणभैरवाय स्वाहा ओम संहारभैरवाय स्वाहा बलिं दत्वा रक्तपुष्पैः समभ्यक्ष्य असिताङ्गोरुरुश्चण्डः क्रोधमोन्मत्तभैरवो कपाली भीषणश्चातसंहाराश्चाष्टभैरवाः अष्टभैरवेभ्यो नमः सकलाराधनैः सुवर्धितम् अर्घ्यं दत्त्वा प्रार्थ्य देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारण अग्निकार्य प्रबद्धोऽहं मणिञ्जां देहि मे प्रभो तं प्रार्थ्य अग्निकार्यमाचरेत् नित्ये नैमित्तिके चैव प्रतिष्ठायां महोत्सवे ग्रहणे विषु संक्रांत्यां शत्रूणां च प्रदर्शने शांतिके पौष्टिके चैव दीक्षायां च पवित्रके गर्भाधानादिके तेषु शैवानां दहनादिषु प्रायश्चित्तादिकालेषु बह्निकर्म समाचारे
समाचरेत् वकारेण वर्तते ज्ञानं हृणिकार्येण लक्ष्यः प्रज्ञोत्पन्नमलच्छेदात् ध्वनिशब्दमिहोच्यते तत्र अनामिकां पुष्टाभ्यां यस्तमोणे चक्षुषः कुण्डस्य निरीक्षणं शिवमन्त्रेण प्रोक्षणकारणे कुशैहुम्बडन्तास्त्रेण अभ्युक्षणम् औषधन्तकवचेन खननावकीर्णपूर्णसमीकरणसेचन कुट्टन सम्मार्जन समालेपनानि खड्गेन कुशेन विधाय कुण्डमध्यपूर्वया अग्निर्वैश्वानरो वह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः कृपीटयो निर्ज्वरणो जातवेदास्तनूनपाद बर्हिः सुष्मा कृष्णपद्मा शोचिष्केशौषद्बुधः आश्रयातो बृहद्भानुपावको नलः लोहितास्वो वायुसखशिखावाना सूक्षणिः हिरण्यरेता हुतबुद्धः ममहव्यवाहनः सप्तार्चतमुना शुक्रभानुर्विभावसुः शुचिरः पित्तमोर्वस्तु बाणवो वटवानलः मह्ने द्वयोज्ज्वालकीलो वज्रविहर्षिकास्त्रियां त्रिष्पुलिङ्गो विनिगणः संतापः संज्वरस्समो उल्कास्यान्यज्ञज्वाला भूतिर्भसितवस्मिनि क्षारो रक्षादिदातु तपो वनहुताशनः सहां निरीक्षाकृति संस्कारी संस्कृत्य ओम हां हं हां मणिमूर्तये नमः इति भूताग्निपुरकेण गृहीत्वा तदेन मुखकेन नाभ्यग्निना विद्वग्निना च संयोज्य वैश्वेन निस्सार्य ओम हां ब्रह्मणिचैतन्याय नमः वात्रस्ते यस्य संहित्यादिमन्त्रय संरक्ष्यावमुद्य देनमुद्र्यामदीकृत्य आदाय कुण्डस्य प्रदक्षिणं संयोजानन्तरिः परिभ्राम्य पितरौ ईशविगतशिरसौ ध्यायन् पापीशुगर्भणाभ्यां वागीश्वरेण क्षिप्यमाणं विभाव्य भूमिकामूलनामसम्मुखं क्षिप्रे नाभिदेशे हृदा परिसमूह्य परिधानस्य संवृत्तिं विभाव्य शौचाचमनार्थं वयबिन्दुं हृदा दत्त्वा अवचमे सतिगणैः चार्य अस्त्रेण प्रज्वाल्य ओम हां परं गर्भाग्नये नमः इति गर्भाग्निं संपूज्य गर्भरक्षार्थं सप्तधा अस्त्रजप्तदर्भकङ्कणं देव्याः वामहस्ते हृदा बद्ध्वा ओम महास्त्राद नमः इति सप्तवारं जप्त्वा देव्याः वामहस्ते हृदयमन्त्रेण शिखैर्वक्त्राङ्गकल्पनानि निष्कृतिं च विभाव्य ओम शिखायै स्वाहा आहुतित्रयं पुनश्च दत्त्वा जननार्थं दशमेमासि ओम ह्रीं तत्पुराणमध्यक्ष्य ओम ह्रीं कवचाय स्वाहा आहुतित्रयं दत्त्वा जाते गर्भमलापः स्नानार्थं मणिजगदाभिः संदुष्य देवी हस्तस्थ गर्भकङ्कणं उन्मुच्य स्वकमधं देव्याः कृतमिति ध्यात्वा प्रणामभयामहाभ्यक्ष्य सद्यः सूतगणवर्तते मुद्रासंशिच्य गर्भेनास्त्रेण सन्ताड्य वक्त्राणां नालोकनाथनाय अग्नेः कुण्डये च मूलाग्रयोः पञ्चसमिधाः खड्गेन हुत्वा पंचसमिधः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम्याश्चरे अत्रिषोपराता भगवो वप अस्त्राय स्वाहा हुत्वा पूर्वपश्चिमदक्षिण उत्तरासुदत्तपरतिरुत्तरपरिस्तरणादीं संस्थाप्य पूर्वे ब्रह्मणे नमः पश्चिमे ओम हां विष्णवे नमः दक्षिणे ओम महारुद्राय नमः ओम हां अनन्ताय नमः ओम हां इंद्राय नमः ओम हां अग्नये नमः वरुणाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः पूज्य गोभो देवासु सन्नद्धाः बालमेनं शिवाज्ञया रक्षते शिवाज्ञां च श्रावये देशिकोत्तमः सम्प्राप्य समर्प्य श्रीश्रुवौ सपुषौ ऊर्ध्वपतनौ अधोमुखो गृहीत्वा मूढेन निरीक्ष्य अस्त्रेण प्रोक्ष्य कवचेनाभ्युक्ष्य अस्त्रेण संताड्य वह्नौ प्रताप्य आभ्राम्य कुशलमध्यं संस्पृश्य पुनः परिभ्राम्य मध्येन मध्यं संस्पृश्य पुनः परिभ्राम्य मूढेन मूलं संस्पृश्य तयोः कुशलपृष्ठप्रदेशेषु तद्वद्वयं रुद्र विष्णु ब्रह्माख्यादिकं कृतयेत् तत्तराज्यभागेषु हे क्षुते ओम हां हृदयाय
स्वाहा ओम भूमघोराय स्वाहा वेदगृहाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम महादेवाभ्यां स्वाहा ओम ह्रीं हुं महादेवघोराभ्यां स्वाहा ओम हुं हेम घोरतपुरुषाभ्यां स्वाहा ओम हेम हुं तत्पुरुषाभ्यां स्वाहा ओम हं ह्रीं हुं हेम घोर वामदेवाघोरतपुरुषैशानेभ्यः स्वाहा ओम ॐ हिरण्याय स्वाहा गणगाय स्वाहा ओम रक्ताय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा ओम सुप्रभाय स्वाहा अतिरक्ताय स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम रूम रूम हिरण्याकणकाभ्यां स्वाहा ओम रूम रूम कणकारक्ताभ्यां स्वाहा रूम श्रूम रक्ताकृष्णाभ्यां स्वाहा ओम श्रूम श्रूम कृष्णा सुप्रभाभ्यां स्वाहा ओम श्रूम श्रूम सुप्रभा अधिरक्ताभ्यां स्वाहा ओम श्रूम ह्रूम अधिरक्ता बहुरूपाभ्यां स्वाहा ओम रूम 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 श्रूम 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 ह्रूम हिरण्याकणकारक्ताकृष्णा सुप्रभा अधिरक्ता बहुरूपाभ्यां स्वाहा इति हुत्वा गणपतिं पश्चिमानं ध्यात्वा ओम ओम ईशानादनमहाभ्यक्ष्य अर्घ्यं दत्त्वा ओम महास्त्राय स्वाहा आहुतिपञ्चकं दत्त्वा शिवास्मित्वं हुतासनैकिनां कृत्वा ओम महाप्रपालाज्ञासनाधनमूर्तये नमः सहस्रं प्रोतितं पञ्चवक्त्रं सर्ववर्षमेधि खड्गकेटदसवेव कमलकेटमुकुटं सञ्चवामेतदसमुदितरूपं श्रीकपालाग्निमीडे महाप्रपालाग्नये नमः आवाह्य आवाहनादिमुद्रान्तं प्रदर्श्यार्घ्यदत्त्वा सर्वमादाय होमयेत् महां बालाग्नये स्वाहा भूत्वा नाडीं तदा बालाग्नये ओम ह्रूमग्नये स्वाहा पञ्चविंशत्याहुतिः दत्त्वा ओम ह्रूमग्नये स्वाहा इति पञ्चविंशत्याहुतिः दत्त्वा हृदयेन वागीश्वरी वागीशवोऽभ्यच्य तन्मन्त्रेण आहुतित्रयं दत्त्वा ईश्वराभ्यां स्वाहा तौ विसृज्य कुण्डमानं यथाभिरक्षितम् अद्यपरिवारं परिकल्प्य चूडान्तसंस्कारपूर्णार्थं औषधन्तमूलेन पूर्णां विदध्यात् ॐ हां हरं बालाग्नये पूर्णां दत्त्वा अग्निं प्रार्थ्य अग्ने त्वमैश्वरं वेदः पावनं ब्रह्मं यतः तदीहर्तमे सुप्तापकल्पयाम्यहम् अग्नेर्विग्रहमध्ये मन्दिराभ्याप्रविश्य तदीहर्तमे ॐ हां अनन्तमङ्गाय नमः ॐ हां धर्मगन्धाय नमः ॐ हां ज्ञानमालाय नमः हां वैराग्यकेशराय नमः हां ऐश्वर्यकन्यकायै नमः ॐ हां पद्माय नमः पद्मजोहरि ॐ हां रक्षोपदेवासनाय नमः रक्षोपदेवतामूर्तये नमः कमलं सव्ये त्रिशूलं वरुषं परे विभ्राणमुद्रौषं नेत्रं चन्द्रशेखरं दमष्टाकराळविलसद्भ्रुकुटी कुटिलाननं भूतप्रेतपिशाचादीं भर्त्सयन्तं महाप्रभुं बडवाग्निसमं देवं रक्षोघ्नं भावयेद्गुरुः ॐ हां रक्षोदेवाय नमः आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्त्वा नाडीं सन्धाय दशाहुतिः मूलेन दत्त्वा ॐ हां रक्षोघ्नदेवाय स्वाहा ॐ हां रक्षोघ्नदेवाय स्वाहा दशाहुतिः दत्त्वा ॐ हां रक्षोघ्नदेवाय स्वाहा मम रक्षोग्नदेवताभ्यः स्वाहा कृत्वा अथ मन्त्रतर्पणार्थम् ओम हां रक्षोघ्नदेवाय स्वाहा दशाहुतिः दत्त्वा पूर्वे साक्षात् देवाः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं वदे मार्गं दत्त्वा अभिवादने नमस्कारः वेदिकायां निवेद्य धूपदीपो दत्त्वा
ಕ್ಷತ್ರಿಯಸಮಾಜಂ ಭುಜಂ ಸಮನೋಹರಮಾಗ್ರೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭೋ ಇತ್ಯುಚ್ಯತಾ पुष्पं वेद प्रजावान् पुष्पवान् भवति अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति वेद योपामायतनं वेद आदनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमर्तजम् वाजवस्तो वाजवस्त देवो वस्त पिता प्रार्थयत श्रेष्ठतमाय कर्मणे हि विदये कृणारो हव्यदादये भवनामत्य परिहिति सन्नो देवीरपृष्ठयापो भवन्तु पीतये श्रियो विश्रवन्तुनः आद्यं पुरुषमीशानं पुरोहोदं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा विद्यावेक्तरं सनातनं परिगणनबोधानतीर्थदेवेदयत्फलफलङ्गोणिहृतं शिवलिङ्गार्चनात् नमः समस्तोपचारपूजात् समर्पयामि शिवा त्रिचित्रं बलं हरहर नमः पार्वतीपतये महादेवा शिवने पोट्री देवा पोट्री चित्रம்பலம் தில்லையம்பலம் ஔவினைக்கு யுவினையான் என்றே சொல்லோ மகுதலிவி ஔவினைக்கு யுவினையான் என்றே சொல்லோ மகுதலிவி உயிரினை நாடாது இருபதூழ்ந்தவர்க்கு ஊனமன்றே ஊனமன்றே கைவினை செய்தியும் பிதாக்கள் போன்று நாவடியோ செய்வினை வல்தேயமை தீட்ட பெறாதிரே நீலகண்டோ நிருநீலகண்டோ வாழ்க அந்தனர் வானவராணினும் வீழ்க நன்கொழல்வே தடும் பொங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண்நாமமே சூழ்க வையகம் துயரதீகவே ஏகம்பத்துரையந்தாய் போற்றி போற்றி ஆவாய் கனகத்திரளே போற்றி மகளானே போற்றி போற்றி ஆரூரவர்த்தரசே போற்றி சீராதுரையாரா போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु मङ्गलानि सन्तु यत्तर्मः उत्तरोत्तरं श्रेयो भवृद्धिरस्तु श्रीमत् स्वामिनः निजपादारविन्दार्पणमस्तु।